Thank you, pleasure. Congratulations, firstly, on winning this award today. Very honored. Very honored. This is to inspire generations with Sufi and classical music, which we're celebrating. What are your thoughts? It's just to receive such a prestigious title, award, and from the family of Shankarji, and such, it's an ocean of talent. The whole family is an ocean of talent, and I'm very humbled, very touched. Thank you, Ram, for thinking of me. So if we were just, before your comment, we were just talking about the classical music, the lineage. Do you think it's diminishing somewhere, and events like these are very encouraging? It is not diminishing. In fact, more people are learning today. I feel that there was a time when people were not so aware about the importance, not even importance, but the necessity of training in classical music. There was a time when people thought that probably just copying one singer or two singers, whatever, is going to make them sing. It also made them singers. But I think because of the fact that I didn't get a chance to learn as a child when I was growing up, I started learning from teachers and various people after I came to Bombay, after I became a singer. And then through my show in Saregama, when I used to do Saregama in the 90s, we paid a lot of attention on uh, instilling the thought or the necessity of classical music into the minds of young budding singers, and that is why I think today's generation is very well learned. I think when they were growing up, they saw Sarigama, and they realized that we really need to know the rag and tal. So I think the awareness that we created in the 90s is working today, and today all the new singers, everyone is talented, everyone is learning music. Look at Sneha only. Sneha तो खैर जिस फैमिली से आती है वो कोई उसके पास चारा ही नहीं था, ना सीख पाने का उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन जैसे वो गाती है तो उससे हम नेचुरली हम यही कह सकते हैं कि क्लासिकल म्यूजिक तो स्ट्रेंथन ही हो रहा है मेरे ख्याल से, अच्छा हो रहा है। और क्लासिकल म्यूजिक इज मर्जिंग इनटू पॉपुलर म्यूजिक। जो बच्चे हैं वो क्लासिकल म्यूजिक म्यूजिक में भी ट्रेंड हैं और लाइट म्यूजिक भी तगड़ा गाते हैं। अगर भी proud father of great artist and award, इतनी सारी moments हैं जहाँ you have set this right in your son और आज ये एक moment और है मैं मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बेटे को एक अजीब शख्सियत शंकर शंभू का अवार्ड मिल रहा है। मैं आया भी इसलिए पार्टिसिपेट है राम बुलाया है। आज की गेस्ट का ऑनर है सर। और शंकर शंभू जी जो वो शख्सियत है, अजीब शख्सियत है, जिन्होंने ख्वाजा साहब के दरगाह में अजमेर में ये पहले हिंदू कव्वाल है जिन्होंने अच्छा। और जब महबूब स्टूडियो का उद्घाटन हुआ था तब भी महबूब साहब ने उनको बुलाया था। अच्छा। और ये ऐसे शख्सियत है कि जो मुसलमान कव्वाल हैं वो भी मानते थे, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन उनका जो डिक्शन था वो बहुत बहुत मानते थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल के आए। सोनू भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। इस कार्यक्रम की अवार्ड फंक्शन की शोभा बढ़ाई आपने, थैंक यू वेरी मच। और बाकी सोनू भाई हकदार हैं इस चीज़ से, इस अवार्ड के और इससे भी बड़े बड़े अवार्ड के हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने संगीत की बहुत दिल से सेवा की है और बहुत ही अच्छा संगीत लोगों को दिया है। डिजर्विंग है और मैं बहुत ही आभारी हूँ बिजी शेड्यूल में कुछ समय निकाल के आए। Firstly, congratulations on such a big news, on the big honor of Padma Shri. We're really, really delighted and happy, and many, many congratulations. Thank you. What Thank do you have you to so say? I much. mean, it's the music, the essence of music that you have, and that's how you're here today with Shambhu Shankar also as with, an amazing line of music, the lineage, the legacy that you represent so strongly. Let's see, it's been 50 years and I've been learning and listening and, and performing at the same time. Uh, it has been a very long journey for me.
मतलब कल की बात नहीं है, ऐसा लगता है कल की बात है, लेकिन 50 साल हो गए। और 50 साल के बाद जब कोई मकाम पे आप पहुंचते हैं और आपको नवाजा जाता है और इस तरह के अवार्ड मिलते हैं तो बेहद खुशी होती है। और सबसे बड़ी खुशी मुझे ये हो रही है कि सब खुश हैं, मुझे मिल रहा है और लोग मुझे ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है हमको मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। और मुझे मुझे ऐसा मुझे पता है कि मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इतना प्यार करते हैं कि 2 महीने होने को आए हैं और सेलिब्रेशंस चल रही हैं। और बड़ा करम उसका, बहुत बहुत उसका धन्यवाद कि उसने मुझे चुना, इस साल मिला मुझे। जी आज की जो इवनिंग रही, बहुत मुझे लाइक राम जी, यू नो शंकर शंभू जी एक बहुत बड़ा नाम, they are institution, you know the name itself talks about जो कवाली का स्टाइल उनका था, जो गाने की उनकी गरारियाँ और जिस तरह से वो गाते थे, ऐसी मतलब शंकर जी की जो आवाज़ थी मखमली, और फिर कव्वाल जो हम तो बहुत छोटे होते थे जब हम उनको सुनते थे, और मुझे अभी भी उनकी बात याद है। वो एक जगह हमेशा उनकी गरारी बड़ी वो रहती थी, एक ऐसे मतलब वो आते थे और इतना वो जो कहते थे, तो मैं छोटी होते जब मैं सुनती थी तो मुझे मैं वो अ, गाती थी, अपने गले से निकालती थी उसको। और अपना एक मुख्तलिफ अंदाज था उनका, और लोगों पे ऐसे छाए हुए थे उस वक्त, ऐसे लोगों को मतलब उनको उनका गाना ऐसा कमाल का गाना था। और कोई जोड़ नहीं था उसका, कोई तोड़ नहीं था उसका, बहुत कमाल उन्होंने गाया। और अभी उनके परिवार में कितने लोग जो हैं वो गा रहे हैं, और इतना गाया राम भाई ने और शंभू जी की फैमिली, और आगे अब बच्चे सब जो गा रहे हैं। एंड दीज आर लाइक फैमिलीज जिसमें संगीत है। जैसे आई एम ऑल्सो बॉर्न इन अ फैमिली जहाँ मेरे पिताजी इतने बड़े लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर, और मेरी मम ने इतना गाया फोक, और हरियाणा फोक, पंजाबी फोक, और यहाँ तक कि पश्तो में गाया। तो ये मेरी तो पहली जनरेशन थी, और मेरी अब मैं हूँ तो सेकंड जनरेशन है। बट इन लोगों की जनरेशन काफ़ी पहले से चली आ रही हैं, और अब आगे चलती रहेंगी अगर बच्चे इसी तरह, क्योंकि वो ब्लड में तो जैसे भी कह लो आता ही आता है। तो विच इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग। जेनेटिक जब होता है तो उसका एक अपना, और फिर उसको निखारना पड़ता है। फिर निखारने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती कि अब जब अंदर होता है खून में तो उसको जो है जल्दी ही वो हो जाती है तैयार चीज़, ऐसा है जी। थैंक यू। doing so wonderfully well, especially it is very good to hear and see all this. Thanks so much. Today you are here for Sri Shankar Shambhu Memorial Award, Ji. which is again a legacy in our music industry. What do you have to say on that? Firstly, congratulations to Ramchandra ji and entire Parivar for this wonderful initiative of having this, not only this award function, but also, uh, you know, continuing the legacy of this good music. So, congratulations to all of them. And it's wonderful to be here to be among all the legendary artists who are performing today. And it's a treat to the music. It's a treat to the ears, this wonderful music. What is what kind of music do you think with so much of classical, getting somewhere losing the grip of it. So what do you have to say on that? Such events always revive all of that and keeps it going. Actually, lose nahi hua hai. I think there's a very strong presence of good music. चाहे वो classical हो, devotional हो, ghazal हो, semi-classical हो. Even some film songs are absolutely fantastic. So I think our tradition will never get lost. And just like you said, these events like this, reinforce the importance of good music. It also reinforces the place it has in society.
It reinforces the importance that we all hold, the entire music industry holds of music like this. So it's absolutely fantastic to have events such as these. I think it's happening all over India and all over the world. If you go around the world today, people are hungry for good music, for classical music, for ghazal, for bhajan, for Purani Geet. So I don't think we'll ever lose that identity. It just reinforces, events like this reinforces the fact that our legacy of classical music and good music will always remain. Many songs, you can't let you go without hearing a line. I've just arrived back from Europe, literally just a couple hours back, so my voice is not up to it, but I'm sure you'll have some good music out there. Thank you so much. Namaskar. तो 2025 में आपने रखा है, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हैं, जैसे बता रहे हैं, तो इसके लिए तो आप बताना चाहेंगे कितने सालों से अवार्ड हो रहा है और जो मैं आज जो इसको अवार्ड मिलेगा तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत नमस्कार रामशंकर की तरफ से। आज मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरे स्वर्गीय पिताजी स्वर्गीय शंकर जी, जो कि शंकर शंभू के नाम से मशहूर थे, दो भाई थे, तो आज मेरे स्वर्गीय पिताजी शंकर जी की पुण्यतिथि है, बरसी है, और मैं हर साल उनकी बरसी पे एक म्यूजिक इवनिंग और उनके नाम से एक अवार्ड फंक्शन करता हूँ। तो इस बार जो है, इस साल जो है 2025 जो शंकर शंभू मेमोरियल अवार्ड है, वो मशहूर प्लेबैक सिंगर लेजेंडरी पद्मश्री सोनू निगम जी उनको दिया जा रहा है, और जनाब अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब इनको दिया जा रहा है। और ये गज़ल और क्लासिकल के क्षेत्र में सोनू निगम जी बहुत ही लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो ये सब हकदार हैं इस अवार्ड के। और ख़ास तौर से जयपुर से तशरीफ़ लाए हैं आज इस मेरे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, और थोड़ी देर में सोनू भाई भी हाजिर हो जाएंगे। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के और ये अवार्ड लेने आ रहे हैं। और बड़ा ही प्रेस्टिजियस ये है, क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिताजी और चाचा जी अपने ज़माने के बहुत मशहूर सूफ़ी गायक रहे हैं, और उन्होंने कई फिल्मों में अपनी आवाज़ें दी हैं, और कई उनकी मशहूर कव्वालियाँ जो कि HMV से रिलीज़ हुई है। तो हम सब भाई मिलके, मेरे चाचा के बच्चे और मैं और मेरे बच्चे आदित्य शंकर, स्नेहा शंकर, सब मिलके ये कार्यक्रम का आयोजन काम करती है जी। ये ईश्वर की कृपा है कि ये लेगेसी चली आ रही है। और मेरी जो बेटी है स्नेहा शंकर, वो हमारी 4th जनरेशन है, 4थी पीढ़ी है संगीत के क्षेत्र में। मेरे दादाजी उस्ताद चुन्नीलाल जी, मेरे पिताजी स्वर्गीय शंकर जी, मेरे चाचा जी स्वर्गीय शंभू जी, उसके बाद मैं, और फिर मेरी बेटी स्नेहा शंकर, मेरा बेटा आदित्य शंकर, और मेरे चाचा के बच्चे, उनके बच्चे, सब संगीत के ही क्षेत्र में हैं। सभी लोग संगीत के क्षेत्र में हैं, और ये हम लोगों के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है। शंकर शंभू मेमोरियल ट्रस्ट की बात करें, गीत संगीत के अलावा सब एक तरह काम करती है। ये स्वर्गीय शंकर शंभू मेमोरियल ट्रस्ट जो है, ये उभरते हुए कलाकारों को भी हम लोग प्रमोट करेंगे, जो अपकमिंग कलाकार हैं उनको हम लोग प्रमोट करेंगे। और ये भी आगे मेरी कोशिश रहेगी कि जो ज़रूरतमंद कलाकार हैं उनकी भी मदद की जाए। तो हम जिस लायक भी हैं, हमारा ट्रस्ट जिस लायक भी है, तो वो उनकी भी हेल्प करेंगे। और सबसे अहम ये है कि अच्छा संगीत, अच्छी मेलोडी और शास्त्रीय संगीत को प्रमोट करना है। आदित्य और स्नेहा की अगर बात करें कि हीरो का बेटा कहता है हीरो नहीं बनूंगा, जरूरी नहीं है कि 2 पैसे में पापा है उसमें आए, लेकिन इसके बारे में क्या कहना है स्नेहा? मैं इस चीज में बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ कि मेरे बच्चे ने बड़ी खुशी इस प्रोफेशन को मतलब एक्सेप्ट किया, और वो अपनी मर्जी से, मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की उन पे, वो अपनी मर्जी से। आदित्य भी म्यूजिक की फील्ड में आया, और आपको पता ही होगा पिछले दिनों उनका एक बहुत ही खूबसूरत एल्बम टी सीरीज ने रिलीज किया था, जिसको मनोज मुंतशिर ने लिखा था और आदित्य ने गाया, और उसका ही म्यूजिक था। ऐसे ही स्नेहा भी अभी इंडियन आइडल में ईश्वर की कृपा से गा रही है, बहुत अच्छा कर रही है, और जीत हार तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन जितना भी गा रही है बहुत मेहनत से अच्छे से गाती है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे सब भाइयों के बच्चे, मेरे चाचा के जो बच्चे हैं उनके भी बच्चे
और मेरे भी बच्चे सब म्यूजिक फील्ड में ही हैं और सब अच्छा काम कर रहे हैं, सब बहुत अच्छा। लास्टली सर, यहाँ पे जो गेस्ट आए हैं और जो ऑडियंस आई है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, जो अवार्डी? जी लास्टली सर, जो अवार्डी हैं, गेस्ट हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? लास्ट ईयर लास्ट नहीं, जो यहाँ पर बुलाए हैं आपने, जिनको सम्मानित करेंगे हाँ आज। हाँ, जिनको सम्मानित करेंगे सोनू निगम जी हैं, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन साहब हैं, खास तो यही हैं। इसके अलावा गेस्ट परफॉर्मेंस में पूजा गायतोंडे बहुत अच्छी टैलेंटेड सिंगर है, वो सूफी कलाम पढ़ेंगी, वो गाएंगी। और हम सब भाई, मैं, मेरे चाचा के बच्चे राकेश पंडित, प्रदीप पंडित, राजा पंडित, हीरा पंडित और दीपक पंडित, ये सभी हाजिरी दे रहे हैं और उनके बच्चे भी सारे हाजिरी देंगे। सर, आप दोनों क्या कहना चाहोगे? आज आपको श्री शंकर शंभू जी अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? प्यारे दोस्तों, आदाब, नमस्कार। सबसे पहले तो शंकर शंभू मेमोरियल ट्रस्ट के और ख़ासतौर से हमारे रामशंकर भाई के हम शुक्रगुजार हैं। और ये हकीकत है कि हम तो 1960 की बात आपको दोहरा रहे हैं। हम बहुत छोटे छोटे से हुआ करते थे और हमारे दोनों अंकल उस वक्त हम लोगों को ऐसे ऐसे सबक सिखाते थे। और उस वक्त की बात है कि हम जब उधम मचाते थे तो वो हमें बुला बुला के ये कहते थे, बेटे अभी तुम किसकी तारीफ कर रहे थे? मैंने साहब लता दीदी की, रफ़ी साहब की, मनाडे साहब की, इनकी। अच्छा, तो हम अल्लाह से दुआ करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप भी कुछ ऐसे बने कि लोग आपकी तारीफ करें और आपका जिक्र करें। उसका करम है और उनकी दुआएं शामिल है कि हम यही सोच के भी हाजिर हुए हैं कि उनके लिए अगर हम कुछ हाजिरी देंगे तो हमें दिल से सुकून मिलेगा। और इस ट्रस्ट के लिए हम भाई को अभी से ये आश्वासन किया, बल्कि पूरा भरोसा देते हैं कि जब भी कोई खिदमत होगी ट्रस्ट के लिए हम हाजिर हैं और हम उसमें अपना जो भी रोल है ये देंगे, उसको निभाएंगे। देखिए हाँ जी, साहब, हमें ये इतना फख्र हासिल है कि जिन लोगों ने हमारा मार्गदर्शन किया, आज उन्हीं का अवार्ड हमें दिया जा रहा है। हमें शिवरंजनी राग उन्हीं से हमने सीखा। और मैं फराब साहब का कोई पता बदल के कहूँगा, हर जलवे से एक दरसे नमू लेते हैं, लबरेज कई जामो सुबह लेते हैं, जब तुम पे नजर पड़ती है शंकर शंभू, संगीत की सरहद को हम छू लेते हैं। और आप यकीन मानिए कि आज जितने भी कव्वाल हजरात गा रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारे अंकल का मकाम हमने वो देखा है अजमेर शरीफ में, जो बहुत काबिल लोग जिनको हम विद्वान कहते हैं, आलिम फादिल कहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं, हमने अपने कानों से आंखों से ये देखा है कि शंकर शंभू बुलाइए। ऐसी तरबियत रखते थे, ऐसी तालीम रखते थे। और वो जब फारसी पर्शियन गाते थे तो वो लोग जरा भी ये नहीं कहते थे कि गलत हो गया कहीं से, इस अंदाज से इतना परफेक्शन से गाते थे। देखिए, कुछ भी बदला हो लेकिन सच्चाई नहीं बदलती। ये बदलना जरूरी है। पुरानी फिल्मों में कवाली होती थी, वो भी होती थी, पुरानी फिल्में अगर देखें, आजकल क्या कवाली को बच्चे समझने भी नहीं। नहीं, क्यों नहीं समझेंगे? आप और हम समझाएंगे तो समझेंगे ना। कोई एल्बम रिलीज होता है, जब तक आप उसकी पब्लिसिटी नहीं करते हैं, उसको सुनवाते नहीं है, तो कैसे आएगा सामने? तो हम HMV मतलब सारी कंपनियों को कहते हैं, रेडियो को कहते हैं, टीवी को कहते हैं, वो कहते हैं आपको कोई जानता नहीं, हम कैसे पेश करें? तो हम उनसे कहते हैं हमें आप जानते थे क्या? जानता कुछ नहीं है, पहचानवाना पड़ता है, कला को सामने लाना पड़ता है। कमर्शियल चीज़ों में अपने आप एक अलग चीज़ है, लेकिन सच्चाई और इल्म विद्या वो अपने जगह इतना बड़ा रोल निभाती है कि सच्चाई के साथ कायम रहती है। देखिए, ये पता इसी पे कौन समझाए बेशऊरों को, अक्स पानी में तर नहीं होता, दर्द बढ़कर दवा तो होता है, ऐब बढ़कर हुनर नहीं होता। तो हुनर तो ऐसी चीज है जो सर चढ़ के बोलता है। तो वो ऐसे ऐसे हमने फनकारों को सुन लिया, शंकर अंकल और शंभू अंकल, उसके अलावा उस्ताद अमीर खान साहब, पंडित जसराज जी, बड़े गुलाम अली खान साहब, तो वो सच्चाई तो लौट के ही आनी है सब। हम आप लोगों से भी यही गुजारिश, सॉरी सर, हम आप लोगों से यही इल्तिजा करेंगे, सच्चाई को बयान कर देंगे तो आने वाली जनरेशन हमारी धरोहर जो संस्कृति है, हमारा म्यूजिक है, वो कायम रहेगा। वरना ये सब कुछ सीखने के लिए हमें विदेश जाना पड़ेगा, ऐसा हमें महसूस होता है। अगर हमने बदला अपने आप को नहीं तो। मैं आपका बेटा,
आपकी बेटी और आप किसी प्रोजेक्ट में लगाएंगे? बिल्कुल, बहुत जल्दी एक हम लोग प्लान कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट जिसका नाम हमने रखा है सूफी ट्रायो। अच्छा, सूफी ट्रायो। तो उसमें मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी स्नेहा शंकर, हम तीनों मिलकर कुछ फ्यूजन चीज़ें करेंगे। तो वो बहुत जल्दी आप लोगों की सेवा में आएगा। और आज के कार्यक्रम में खास तौर पे जो गेस्ट ऑफ ऑनर जो हैं, तो वो श्री अनूप जलोटा जी, श्री मनोज मुंतशिर जी, जसविंदर नरूला जी, श्री अजय साहब जी, ये बहुत ही मशहूर और बहुत ही उम्दा शायर हैं अजय साहब। तो ये गेस्ट ऑफ ऑनर आज के हमारे यहाँ ये खास मेहमान खुसूसी जिसे कहना चाहिए। तो वो सारे ये लोग हैं और इनके आने से हमारे इस कार्यक्रम की जो रौनक है वो बढ़ गई है। देखिए, आप लोगों ने रामायण दिखवाई, महाभारत दिखवाई, मिर्जा गालिब, तो लोग सच्चाई को सामने लाए। हम 40 साल से बॉम्बे, हम 78 में आए थे, तब से हमने ये महसूस किया कि लोग कहते हैं साहब ये तो चलता नहीं है। जो सच्चा सिक्का होता है, जो अच्छा फनकार होता है, जो अच्छी शायरी होती है, जो अच्छा कोई भी आर्ट एंड कल्चर में किसी भी आदमी को ले लीजिए, वो चलेगा। लेकिन झूठ बोल के अगर आप चलाएंगे तो वो आगे जाके रुक जाएगा। अजय साहब, आप कुछ आप भी खुश नसीब समझता हूँ कि इतने बड़े फनकारों की जो आज पुण्यतिथि यहाँ मनाई जा रही है, शंकर शंभू इस सब कॉन्टिनेंट, इस बड़े सगीर के मुमताज़ हम कह सकते हैं कव्वाल रहे हैं। कव्वाली की हमारे सब कॉन्टिनेंट में बहुत पुरानी रवायत रही है। नात, मनकबत, हम इन सभी फनों पर उनको ऐसा उबूर हासिल था जो शंकर शंभू साहब हुआ करते थे। और ऐसी ऐसी कव्वालियाँ उन्होंने पेश की हैं जो आज तक लोगों की ज़बान पर हैं। जैसा आपने कहा कि इस तरह का संगीत जो अब बदल गया है, नहीं आजकल बहुत ज़्यादा राइज नहीं है, चलता नहीं है, तो उस पर मैं एक छोटा सा आपको छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा कि अभी कुछ 2 साल पहले मैंने एक गाना लिखा था। उसमें मैंने उर्दू इस्तेमाल की थी कि पसे हिजाब और उसमें निखत, इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए थे। और इंस्टाग्राम पर पहली बार हमने उसे पोस्ट किया था और उसको छोटे छोटे बच्चों ने देखा, 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उसको देखा है। तो ये कहना कि आजकल ज़बान नहीं चलती, ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सही नहीं है। क्योंकि अगर हम सही चीज़ दें बच्चों को तो और जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं जो भी हैं 15 से 30 साल के बीच के हैं, तो इसका मतलब है कि उर्दू ज़बान से सबको वाबस्तगी है, सबको उनसियत है, सबको लगाव है, सब उससे प्यार करते हैं। तो ये जो कव्वालियाँ आज हमारे देश में हम जब HMV और उससे खजाने में सुनते हैं यूट्यूब में जाकर, तो आज भी आप सुनते रह जाते हैं। अगर अच्छी चीज़ है, जो खालिस सोना होता है ना, तिलाए नाब जिसे कहते हैं, वो हमेशा खालिस ही होता है। ये मैं यही कहना चाहूँगा। ये हमारे उस्ताद यहाँ बैठे हुए इतने बड़े बड़े, इन लोगों ने भी ऐसी ऐसी गज़लें गाई हैं। और शंकर साहब की भी आप जानते ही हैं, जिस तरह की इनकी ख़ानदानी रवायत है कि, और ज़बान के अलावा उन्होंने जिस तरह से लिटरेचर की, जिस तरह से मौसीकी की खिदमात की हैं, वो तो हमेशा हम सब याद रखेंगे। अवार्ड की परंपरा शुरू की, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और ऐसे लोगों के नाम से ये चीज़ दी जा रही है जिनको वाकई वो अवार्ड मिलना चाहिए। क्योंकि एक उर्दू में एक शेर हुआ करता था कि कोई इनाम, कोई भी तमगा सच्चे हकदार तक नहीं पहुंचा। तो मैं कहूँगा कि इन्होंने सच्चे हकदार को मुंतखब करके ये अवार्ड देने की कोशिश की है, जो कि बहुत बड़ी बात है। प्रोग्राम के उनके मीडिया खाते के वाले के हैं, आपके अच्छे लोग आए, टूरिज्म सर आए हैं, आप भी आए, क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं प्रोग्राम? पहले तो राजीव के महावीर को की तरफ से आप सबको नमस्कार। और ऐसी विभूति जो शंकर शंभू हमारे मौसाजी लगते हैं, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि हमारा परिवार इतना लेगेसी का काम कर रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और अच्छा लगता है कि बुज़ुर्गों को याद रखते हैं। तो आज ओरिजिनल म्यूज़िक जो गायब हो रहा है उसकी चर्चा होने लगती है। और ओरिजिनल म्यूज़िक के लिए गुरुओं का याद करना, गुरुओं की सोच में रहना, वो लेगेसी और जनरेशन टू जनरेशन म्यूज़िक फैले, इससे अच्छी बात क्या होगी। आज का जो सोनू जी को जो अवार्ड देना from your family, सोनू जी इतने सुरीले हैं कि ये उनकी तरफ, मतलब एक इतनी खूबसूरत बात है कि जब सुरीले लोगों को ये मिलता है तो ऐसे लगता है कि सुरों का और विस्तार हुआ, कोई और नया राग बना, कोई और रागिनी छिड़ी। तो सोनू भैया हमारे इतने डूबे हुए हैं कि मुझे लगता है कि ये एक परिवार की तरह है। तो अवार्ड नहीं है, ये एक दूसरे का प्यार है जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं सब लोग मिलकर। thank you so much.
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जी शंकर मेमोरियल अवार्ड के बारे में। बिल्कुल ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं ये खुशनसीबी समझती हूँ मेरी, जो मुझे इस मौके पर राम अंकल ने गाने की दावत दी है। और मैं एक्चुअली यहाँ पर नहीं रहती, आई लिव इन जर्मनी। वहाँ पर मैं सूफी कॉन्सर्ट करती हूँ। मेरा नाम पूजा गायतोंडे है। और मैं ये मेरी खुशनसीबी समझती हूँ कि मुझे हाज़िरी देने का ये मौका मिल रहा है। आपसे कुछ परफॉर्म करने वाले हैं आप? हाँ जी बिल्कुल म्यूजिक से जुड़े हैं, बिल्कुल क्या बिल्कुल। कहना चाहोगे? मैं दो कलाम पेश करने वाली हूँ। एक ख्वाजा गरीब नवाज का कलाम है और एक पंजाबी सूफी है। तो थोड़ी गायकी मेरे गुरु की, उस्ताद मुनव्वर मासूम जी। यस थैंक यू। Neha, congratulations. Firstly, before we talk about your legacy, we talked about how well you're doing at Indian Idol. Thank you so much. And I'm sure with all God's good wishes and your parents' blessings, we see you, running towards top of the finale, Yes, So congratulations for that. Thank you so much. This is your legacy, Shri Shankar Shambhu Memorial Award, which is happening today. You belong to the same family. Please tell us a little bit about that. Firstly, I am really grateful and I feel blessed that I belong to this family. शंकर शंभू जी की लेगेसी का मैं एक हिस्सा हूँ, ये मेरी खुशनसीबी है। एंड मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझती हूँ। एंड आज शंकर शंभू मेमोरियल अवार्ड्स 2025 का आयोजन मेरे पापा श्री राम शंकर जी ने जो किया है, इट्स मतलब हम सबके लिए ये बहुत ही ज़्यादा खुशी का अवसर है। एंड स्पेशली बिकॉज मेरे फेवरेट पद्मश्री सोनू निगम भैया को फेलिसिटेट किया जा रहा है इस साल। एंड आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी फॉर दैट। Being in a family, कितना help होता है? Of course, it does make you, a notch higher from other contestants who are coming back to Indian Idol. How does it feel when you're performing on the stage, coming from this lineage? How are you different than other contestants that I really ask? बिकॉज जो एटमॉस्फेयर है घर का, वो बचपन से म्यूजिकल रहा है मेरे आसपास। एंड मैं जब 3 साल की थी, उस उम्र से मैं अपने पापा श्री रामशंकर जी से म्यूजिक सीख रही हूँ। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं प्रेशर नहीं कहूँगी बिकॉज ये एक ब्लेसिंग है मेरे लिए। तो मैं इसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे लेती हूँ। एंड इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस लेगेसी को मैं आगे लेकर जाऊँ। और जिस तरीके से इंडियन आइडल के परफॉर्मेंसेस अभी तक रहे हैं मेरे, टचवुड जर्नी बहुत अच्छी रही है। एंड लोगों से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार मिलता आया है, मिल रहा है। ऑलमोस्ट सारे जो मेरे परफॉर्मेंसेस हैं वो ट्रेंड पे चल रहे हैं, उनके ऑडियोज, पीपल आर मेकिंग रील्स, शेयरिंग, मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं। तो इतना सारा प्यार मिल रहा है दैट आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। एंड सबको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। एंड मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ उसमें म्यूज़िक में मैं छोटी सी अपनी कोशिश कर पाऊँ एंड उसका एक हिस्सा बन पाऊँ। गाना जो आपको लगता है इंडियन आइडल में आपको पूरा करके बार-बार मेरा ग्रैंड प्रीमियर का परफॉर्मेंस याद किया कि आए, बहुत बहुत ज़्यादा उसको प्यार मिला था। एंड नॉट जस्ट फ्रॉम द ऑडियंस बट म्यूज़िक इंडस्ट्री के लेजेंड्स जो हैं, सोनू निगम भैया, शंकर महादेवन जी एंड मैनी मोर, उनसे मुझे पर्सनली बहुत सारा आशीर्वाद मिला था फॉर दैट पर्टिकुलर परफॉर्मेंस। एंड श्रेया दी, विशाल सर, बादशाह भैया जो हमारे इंडियन आइडल के जजेस हैं, वो इमोशनल हो गए थे इस परफॉर्मेंस पे। श्रेया दी केम ऑन स्टेज, हग्ड मी एंड मुझे आशीर्वाद दिया। तो वो परफॉर्मेंस मेरे लिए इट्स लाइक इट विल बी रिमेम्बर्ड फॉर एवर। दैट्स माय स्पेशल मोमेंट। तो मैं उसकी 2 लाइन आपको सुनाना चाहूँगी। याद पिया के आए हाय राम, याद पिया के आए, ये दुख सहा न जाए है, ये दुख सहा न जाए हाय राम, याद पिया के आए।
दिल से आके आए। थैंक यू सो मच। लेगेसी आज जैसे यहाँ पे एनुअल फोक म्यूजिक आज हो रही है, क्या कहेंगे जो एक क्लासिकल कल्चर है which is happening that you think is diminishing anywhere, कहीं कम हो रहा है, going, what are your thoughts? How to preserve it? जो क्लासिक म्यूजिक है, क्लासिकल पोइट्री है, वो वक्त के साथ गायब तो हो रही है, ये बड़े अफसोस की बात है। लेकिन जब ऐसे आयोजन होते हैं, ऐसे समारोह होते हैं जहां हम शंकर शंभू जी जैसे लेजेंड को सेलिब्रेट करते हैं, तो ये एक सेलिब्रेशन मैं समझता हूँ बुझते हुए चिराग में इतना घी डाल देता है कि अगले कई वर्षों तक लोग ना शंकर शंभू जी को भूलेंगे और ना उनके संगीत को भूलेंगे। तो हमें हमेशा ये कोशिश करती रहनी चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने जो बड़ा काम किया है उसको हम सेलिब्रेट करते रहें, नया करते रहो, कंपोज करते रहो, बनाते रहो, नया गाते रहो, लेकिन जो हमसे पहले हो चुका है उसकी इज्जत करना हमें एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं चाहिए। आज जो सोनू जी को अवार्ड मिला है, so well, extremely, so positive, आपने भी बताया कि ग्लोबली कैसे उनका नाम उन कंट्री से पहुंचा था, they don't know our language. So who better than Sonu ji to receive this award? It's such a glorious felicitation. जब हम शंकर शंभू जी के नाम पे कोई अवार्ड दें तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अवार्ड एक ऐसे शख्स को दिया जाए जिसकी वजह से हिंदुस्तानी म्यूजिक का डंका देश में नहीं पूरी दुनिया में बज रहा हो। और जब आप पूछेंगे कि कौन है जिसने सिनेमा, बियॉन्ड सिनेमा, प्राइवेट एल्बम, हर जगह जिसका नाम बुलंदी पे है और इज्जत से लिया जाता है। आमतौर पे होता क्या है कि फिल्म को अक्सर ऐसा है कि बहुत इज्जत से नहीं देखते, कहते हैं फिल्म संगीत बड़ा लाइव संगीत है, कोई भी गा लेता है। लेकिन जब उस संगीत में सोनू निगम का नाम आता है तो लोगों को पता चल जाता है कि हाँ, सोनू निगम जैसा गाने वाला आप फिल्म के संगीत में उनको यूज कर लीजिए, आप उनको क्लासिकल के मंच पर खड़ा कर लीजिए, आप जहां भी खड़ा कर देंगे वो जीत के ही आएंगे, फतह याब होके आएंगे। तो एक ऐसी बुलंद शख्सियत को सम्मानित किया गया, मैं समझता हूँ शंकर शंभू अवार्ड के लिए भी एक सम्मान की बात जी। अरे होली जम के खेलिए, और ये जो लोग बोलते हैं ना कि रंग नहीं खेलना और बहुत चीजों से हमको मना करते हैं, इनकी जबान पे ताला लगाइए, जम के रंग खेलिए, जम के अबीर खेलिए, जम के गुलाल उड़ाइए। और जैसे राधा कृष्ण होली खेलते थे ब्रज में, वही होली भारतवर्ष की गली कूचे में दिखाई देनी चाहिए। बहुत सारे भाई साहब, बॉर्डर कर रहा हूं मैं, बॉर्डर जो दूसरी आ रही है, बॉर्डर 2, और आप मुझे टेलीविजन पे देखते ही रहते हैं, कभी इंडियन आइडल, कभी कहीं और, सब चलता रहेगा ऐसे ही। शोज कर रहा हूँ पूरी दुनिया में, देश में, और जो इंडियन म्यूजिक है उसकी जो सेवा कर सकता हूँ वो करता ही रहता हूँ।